आप बंद कर दीजिए. हेलो अनिकेत सर. सर मैं आपको हाँ. सीए चेतन has joined, Durgesh has joined, Rajat Gupta. Good evening, Kevalbhai. Yes sir. કેમ છો? Absolutely fine. Thank you so much ગુડ for ઇવનિંગ. inviting me. કઈ બાજુ છો? કઈ બાજુ છો? ના સેટરડે ઇવનિંગ છે તો ઘરે આવી ગયા છે આજે અને તમે કીધું એમ ઇટ હેઝ ટુ બી એન ઇન્ફોર્મલ કોન્વર્સેશન એટલે એબ્સોલ્યુટલી ઇન્ફોર્મલી નો ફોર્મલ શર્ટ નો ટાઈ હેપી ટુ જોઈન યુ ફ્રોમ માય ટેરેસ બ્યુટીફુલ વેધર છે અમદાવાદમાં અત્યારે આરામથી બેઠા છે. યસ. ઓહો, અનિલ ભંડારી સર ની કમેન્ટ આવી. શું કહે છે સર? અનિલ સર મને વંચાતી નથી તમારી કમેન્ટ્સ. અચ્છા, આ પ્રતિકભાઈ રાદડિયાએ ગુડ ઇવનિંગ તમને કીધું છે. અનિલ ભંડારી સરે તમને કીધું છે હે પ્રિન્સ યુ આર લુકિંગ સ્માર્ટ. સર મારી હમણાં જ અનિલભાઈ જોડે એક મીટિંગ પતી and we just had a phone call half an hour ago. પ્રતિકભાઈ કેમ છો? સર પીપલ આર જોઈનિંગ એન્ડ ધીરે ધીરે પબ્લિક બધું જોઈન કર્યા કરશે. वॉइस नॉट कमिंग भाई, किसकी तरफ से वॉइस नहीं आ रहा है? जरा व्यूअर्स में कोई मुझे बताए तो. आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो एंड वीडियो. यस प्रतीक रादड़िया, एवरीथिंग इज फाइन. प्रतीक भाई તમે કઈક ઓડિયો વિડિયો એવરીથિંગ ઇઝ વિઝિબલ રાઈટ? પ્રિન્સ વિલ બી કિંગ વન ડે. અનિલ ભંડારી સર ઇઝ કમેન્ટિંગ. અનિલ ભાઈ I missed attending his session yesterday. એટલે આજે સર નો ચાન્સ છે. મારા સિનિયર છે કાઉન્સિલમાં એટલે જે સાહેબ કે મને મંજૂર છે. અમને પ્રિન્સ બોલાવે કિંગ બોલાવે પણ એમ્પરર અત્યારે આખા મુંબઈમાં તમે જોયું હશે એક જ છે. નહીં સી ફોર અસ વી આર સિટિંગ ઇન સુરત. when it comes to Mumbai અમારે બંને એક્ઝેક્ટ 280-290 કિલોમીટર જ પડે છે. સુરત ઇઝ ઇન બિટવીન. when it comes to અમદાવાદ તો અનિકેતભાઈ નું નામ એટલું જ સંભળાય and when it goes to Mumbai તો અનિલ સરનું નામ એટલું જ સંભળાય છે. so we are getting benefit of both the people. wonderful and you very rightly pointed. સુરત is the center point. અમદાવાદ ને મુંબઈને કનેક્ટ કરતું એક જ એક્ઝેક્ટ સેન્ટર નું સિટી છે અને ઇટ્સ માય પ્લેઝર. હું તમને એટલું જ કહીશ કે મેં ફેસબુક લાઈવ કર્યું છે, વેબિનાર તો આપણે બધાએ ઘણા કર્યા, ઝૂમ પર કર્યા, ગો ટુ વેબિનાર પર કર્યા, બીજા કેટલા પ્લેટફોર્મ હતા, ઝોહો હતું એન્ડ પ્રોબેબલી 10-15 સોફ્ટવેર્સ પર વેબિનાર્સ કરી ચૂક્યા છે. પણ ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગો લાઈવ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ. એટલે આઈ એમ એક્સાઇટેડ એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ interacting with everybody on this platform. It's totally our pleasure and I am sure આ તમને મેમરી રહેશે હંમેશા માટે. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઈવ. Absolutely. For my lifetime, this is going to be something which is etched in my memory. કે પહેલું ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઈવ આપણે સુરતમાં કર્યું હતું અને કેવલભાઈ જોડે કર્યું હતું. યસ. હા સર, ક્વેશ્ચન આન્સર નો સિલસિલો આપણે ચાલુ કરવાનો છે અને ઘણા બધા ટોપિક્સ આપણે કવર કરવાના છે આજે. સો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ મચ ઓફ ધ ટાઈમ, અરાઉન્ડ 36 પીપલ આપણે જોઈન ઓલરેડી કરી લીધેલા છે અને આ સિરીઝ આપણી આગળ વધ્યા જ કરશે. સો આઈ થિંક વી શુડ સ્ટાર્ટ નાઉ, રાઈટ? એબ્સોલ્યુટલી, આઈ એમ રેડી. બહુ અઘરા સવાલ ના પૂછતા. જો સીએ ફાઇનલ તો થયા પછી આપણે બધાને એક શાંતિ છે કે હવે સવાલોના જવાબ તો ઓછા આપવાના છે. એટલે એક્ઝામ ઓછી થાય એવું કરજો. ના અરે સર, મજા આવશે આપણને. જો ને તમે. ચોક્કસ. ચાલો. હા સર, સીએ જયારે બધાનું પતે પછી એ અમે હોઈએ કે કોઈ પણ આપણા બધાનું જયારે સીએ પતે એન્ડ એવરી પીપલ હેવ ટુ ફેસ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ચેલેન્જીસ, રાઈટ? સો વેન ઇટ કમ્સ ટુ યોર પાર્ટ, કે ભાઈ ઓલરેડી એક સીએ ફોર્મ તમારી હોય છે, બરાબર છે, બટ સ્ટીલ દેર આર લોટ મેની થિંગ્સ, દેર આર લોટ મેની ચેલેન્જીસ વિચ યુ ફેસ એન્ડ વિચ આર ઓફ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ. So what things which you faced when you cleared chartered accountancy, whether there was any kind of confusion कि भाई I should go with the job or I should go with the business or I should join the practice, what kind of things were there with you? So I think
I cannot compare myself. I'll be first honest કે જે લોકોએ ફર્સ્ટ જનરેશન પોતાની ફર્મ ચાલુ કરી છે કે પોતે જ આ કોર્સમાં પહેલી વાર ગયા છે, માય સલ્યુટ ટુ ઓલ ઓફ ધેમ, કેમ કે એ લોકોએ ફર્સ્ટ હેન્ડ બધા ચેલેન્જીસ જોયા છે. કોર્સ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી ઘણા છોકરાઓને ખબર જ નથી કે આવો કરીને કોઈ કોર્સ છે, એટલે કોર્સ માટે જાણકારી લીધી, પ્રોસ્પેક્ટસ વાંચ્યું, મિત્રોને પૂછ્યું, કોઈ વડીલોએ સલાહ આપી હોય કે સીએ નો કોર્સ કરવા જેવો છે, અને એ લોકોએ ડિસિઝન લીધું. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, સીએ થયા પછી પોતાની પ્રેક્ટિસ બી ચાલુ કરી, ઓફિસ ખરીદવી 200 સ્ક્વેર ફૂટ 500 સ્ક્વેર ફૂટ. સો યસ, ઇન ધેટ એસ્પેક્ટ હું તમને કહીશ, પહેલા જ કહી દઉં કે એ ચેલેન્જ કદાચ મને ફેસ નતો કરવો પડ્યો, બટ ચેલેન્જ જુદા પ્રકારનો હોય છે. સી એવરી વન ઓફ અસ ઇન પ્રોફેશનલ લાઈફ હેઝ ટુ ગો થ્રુ અ ડિફરન્ટ ચેલેન્જ. અને કોઈને પ્લેટર પર કઈ મળતું નથી એટલું હું આજે બધાને કહીશ. મળતું હોત તો કદાચ રાહુલ ગાંધી આપણા વડાપ્રધાન હોત, અને જો મળતું હોત તો અભિષેક બચ્ચન અમદાવાદ કે ઇન્ડિયાના સૌથી મોટા સ્ટાર હોત. તો એક વસ્તુ તો છે કે કોઈને રેડીમેડ નથી મળતું. યસ, દેર ઇઝ અ પ્લેટફોર્મ, એમાંથી એડવાન્ટેજ મળે છે, એટલું ચોક્કસપણે માનીશ. તો if I tell you about my journey, see, I have been privileged Sir, that my sir, I would grandfather. like to interrupt. Aniket bhai, I would like to interrupt. Can we go ahead with the conversation in Hindi? Because there are a lot Hindi, many people who watch this conversation. पक्का हिंदी में करते हैं सर, इट विल बी माय प्लेजर. हिंदी Yes, इज sir. माय थर्ड लैंग्वेज ऑफ लर्निंग. तो शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, पर माफ करना अगर कुछ गलती आ जाए और बीच में गुजराती आ जाए. बट हाँ, हिंदी में बात करूं तो यस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो मैं बात कर रहा था, एक Yes. प्रिविलेज था मेरे लिए कि मेरे पिताजी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ही, आप सब जानते हैं, ही वाज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. बट उनके पहले की जनरेशन, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर से शुरू करता हूँ, केवल भाई, ही स्टार्टेड द चार्टर्ड अकाउंटेंसी 1949. Okay. वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, और 1949 में जब अपना कोर्स लॉन्च हुआ, उसकी पहली एग्जाम, दैट मींस द वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन दैट ही हैड टू अपीयर इन, एंड ही वाज फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड. तब क्या था, अगर आप कॉमर्स से हो तो फाइनल दो और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ. अगर आप आर्ट्स से या किसी और स्ट्रीम से ज्वाइन कर रहे हो तो इंटरमीडिएट और फिर फाइनल दो, एंड देन यू गेट अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री. So the very first Okay. exam in 1949 that was conducted, he appeared for it and he was all India first. So my lineage for the profession goes back to 1949, when my grandfather actually was all India first, awarded by the president of India, by at that time a gold medal, and he then Okay. joined a firm which was not his own. Uske baad, sometime in 1975 is when my father became a chartered accountant, and 2008 is when I cleared my CA final. So the journey in that aspects, I did not have to choose or get to somebody to introduce me about the course, because I knew what chartered accountancy is, because it was in the family. पर इसमें चॉइसेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे ग्रैंडफादर ने सीए किया, तो मेरी बुआ है वो सीए नहीं हुई, वो डॉक्टर हैं, शी इज सेटल्ड इन द Okay. यूएस. तो हाँ, Okay. पिताजी ने सीए किया, मेरे बड़े भाई ने भी सीए नहीं किया. तो देर वॉज ऑफ कोर्स ऑलवेज दैट डिसीजन टू बी मेड ऑफ आई वांट टू परस्यू दिस कोर्स, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था. साइंस अच्छा था नहीं, स्कूल में रैंक आता था पर टॉप 3 रैंक में नहीं आता था, क्योंकि साइंस में मार्क खराब आते थे. तो समझ गए भैया कॉमर्स में जाना है. थैंकफुली यस, सीए तो अपना ऑल थ्रू आउट निकल गया, बट द डिसीजन वाज वेदर इट इज एक्साइटिंग, वेदर दैट इज समथिंग जो मुझे पसंद आ रहा है. और हाँ, इट वाज समथिंग, अकाउंट्स वाज ऑलवेज समथिंग दैट इंटरेस्टेड मी. लॉज ऐसी चीज थी जिसमें हमेशा मुझे पहले से दिलचस्पी थी, और आई थिंक उसी की वजह से मैं इसके और खींचा गया. बैकग्राउंड तो था ही घर में, और मैंने ये कोर्स किया. बट एक चीज जरूर कहूंगा केवल के आई वेरी फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेडिशनल एरिया में कम फोकस करूंगा. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आई वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रैक्टिस. इवन टुडे सूरत में जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे रेरा पे बुलाया है, मुझे आउटसोर्सिंग पे बुलाया है, मुझे इंटरनेशनल स्ट्रक्चरिंग पे बुलाया गया है. मैं इनकम टैक्स पे जानबूझ के लेक्चर नहीं लेता हूँ, एंड आई हैव नेवर फोकस्ड ऑन दोज एरियाज. और that is why I wanted to do by qualifying, not just join the firm और उसी काम को आगे बढ़ाऊं, पर कुछ नया करे, वो हमेशा इच्छा थी. Yes. यहाँ पे जो लोग भी कमेंट्स में क्वेश्चन लिख रहे हैं, आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस, बट वंस अवर इंटरेक्शन गेट्स ओवर. यहाँ पे किसी बंदे ने कमेंट लिखा था रिगार्डिंग द एग्जाम्स क्लैरिफिकेशन. सो आई थिंक वी विल टेक ऑल दिस कमेंट्स एंड ऑल दिस क्वेश्चंस लेटर ऑन. Sure. ठीक है? Yes. Sir, we would like to know your journey from the branch. You started in a Ahmedabad branch, you became the chairman, and then you went to WIRC. How has been that experience, and how this experience changes you as a person? So केवल बात करूँ ना, ऑनेस्टली मैं क्वालिफाई हुआ और मैं ब्रांच में भी गया 2 साल या 3 साल बाद ही चला गया था.
मैं खुद सोचता हूँ कि मैं इतना जल्दी ये जर्नी में पब्लिक लाइफ में या क्यों चला गया। मैं आपको ऑनेस्टली शेयर करूँ तो मुझे याद है मैं बॉम्बे में आर्टिकलशिप कर रहा था और मैं फिर अहमदाबाद वापस आया मेरी फाइनल के एग्जाम के लिए। और अभी तो एसएसपी है, अच्छा लगता है, लोगों को सब ऑनलाइन सबके सारे फॉर्म्स भर जाते हैं, किसी को लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। पर उस समय हमें आईटी की ट्रेनिंग करनी थी, आईटी तो हमारे वक्त नहीं था पर जीएमसीएस जरूर था। जीएमसीएस की ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें लाइन में रुकना पड़ता था और काफी बच्चे जो बारगांव से आते थे सुबह 5 बजे से लाइन में लगते थे। मैं सुबह 8 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचा और देखा तो 2 फ्लोर लंबी लाइन थी और उस 2 फ्लोर में कितने ही बच्चे रुके हुए थे, खड़े थे और वो सब अपना फॉर्म भर रहे थे सीए फाइनल का, एग्जामिनेशन का। और मैं भी जाके चुपचाप लाइन में लग गया। ऑफ कोर्स फादर तब काउंसिल में थे तो एक दो एम्प्लॉय को मालूम पड़ा ब्रांच से, तो नीचे आ गए, बोले सर चलो चलो आपका फॉर्म हम भर देते हैं। मैंने बोला भैया ये सब लोग आगे रुके हैं, दे हैव कम बिफोर मी, देयर इज नो वे आई कैन कट द लाइन एंड मैं लाइन में आगे जाके फॉर्म भरूंगा, मैं यही ठीक हूँ, जब नंबर आएगा 2 घंटे बाद तब मेरा फॉर्म भरूंगा। पर तब से मेरे को अंदर से एक इच्छा थी केवल भाई कि यार अपना इंस्टीट्यूट ऐसी सिस्टम थी। और अगर अनिल भाई सुन रहे हैं, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन हम दोनों ने बहुत शेयर किया है कि जब मैं मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ तो इंस्टीट्यूट और केवल, और आप सबको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लास्ट 1 साल से पहले बने हैं उनको याद होगा, हम मेंबरशिप का एप्लीकेशन का फॉर्म भरते हैं ना, तो मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इंस्टीट्यूट हमसे क्या मांगता था, P1 P2 या सीपीटी आईपीसीसी और फाइनल की मार्कशीट। जो मार्कशीट जो इंस्टीट्यूट ने मार्कशीट आपको दी है उसी को आपको बोलता था आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करके हमको वापस सबमिट करिए। आई मीन ये सारे प्रोसेसेस। और जब हम दुनिया में बात कर रहे हैं पेटीएम की, ऑनलाइन पेमेंट की, या जमाना ऐसा आ गया है कि लोग, आई मीन यंग जनरेशन सुन रही है तो वो लोग तो डेटिंग भी ऑनलाइन कर लेते हैं, यू नो देयर आर एप्स टू फाइंड देयर गर्लफ्रेंड्स ऑनलाइन, टू डिस्कस विद देम ऑनलाइन, सोशल लाइफ इज शेयर्ड ऑनलाइन। और इस जमाने में अगर हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो आई थिंक इट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट ऑनेस्टली समथिंग आई कुड एक्सेप्ट। और मैंने सोचा लाओ इसका ट्रायल करते हैं। तो उसी जोश से मैं ब्रांच में घुसा। सबसे पहले जब भी मौका मिला ब्रांच की वेबसाइट सबसे पहले मैंने बनाई, तब ब्रांच की वेबसाइट ही नहीं हुआ करती थी। फिर जीएमसीएस, आईटीटी, ओटी, इन सब का ट्रेनिंग के लिए मैंने ऑनलाइन पोर्टल बनाया। मैंने सोचा बुक माई शो पे जाके मैं टिकट जाके मैं मेरी सीट सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इस सीट पे बैठ के पिक्चर देखना है। तो मेरा स्टूडेंट क्यों सुबह 5 बजे से लाइन में खड़ा रह के वेट करे कि मुझे जीएमसीएस किस बैच में मिलेगा। ऑनलाइन अनाउंस करिए, जिसको जो पहले आएगा उसको सीट मिल जाएगी। तो ब्रांच में जो रिफॉर्म्स कर पाया ब्रांच में किए। फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ता गया, लोगों का प्यार मिला, उन्होंने बोला आप रीजन में जाइए, तो रीजन में गए। रीजन में भी काफी सारे चेंजेस लाए हमने। डेफिनेटली एक तो सबसे पहला चेंज, आप सुन सकते हैं ना, केवल बीच में सो सबसे पहला चेंज ये किया कि मोबाइल ऐप बनाया रीजन का। स्मृति जी तब मिनिस्टर थे, वो आए थे, उनके हाथ से लॉन्च करवाया। काफी आईटी के इनिशिएटिव्स किए। रीजन में इतना अच्छा काम हुआ, सेक्रेटरी बना, लोगों ने बोला कि नहीं वी मस्ट ट्राई फॉर द सेंट्रल लेवल। एंड लास्ट ईयर जब इलेक्शन था तब सेंट्रल काउंसिल का फॉर्म भरा। आप सबको जान के खुशी होगी, आई वाज द यंगेस्ट कैंडिडेट हु हैड एक्चुअली इवन थॉट ऑफ कंटेस्टिंग। और आज जब काउंसिल है हमारी 32 मेंबर की इलेक्टेड ऑल इंडिया और 8 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो इन 40 में आई एम द यंगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एज। बट एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2 टर्म ब्रांच में की है, 1 टर्म रीजन में की है। तो शायद आधी से ज्यादा काउंसिल से जो नए स्पेशली हमारे काउंसिल में आए उन सब के मुकाबले आई बिलीव काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ब्रांच के प्रॉब्लम्स, रीजन के प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशंस देख के मैं आगे बढ़ा हुआ हूँ। तो यही जर्नी थी, लोगों से इंस्पिरेशन मिली, देखता गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैंने सीए किया तब शायद 1.5 लाख थे, आज 3.5 लाख हो गए हैं। यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबरशिप का सबसे बड़ा हिस्सा है और इनके पेन पॉइंट्स कौन समझता है, आई बिलीव दे रिलेट मोर विद यंगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी बिलीफ से मैंने सोचा कि यस वी मस्ट हैव सम यंग रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल। और सर आज आप सबकी दुआ से सेंट्रल काउंसिल में है। सर आई गेस काउंसिल जो अभी की है एंड आप जब WIS के अंदर थे, नाउ इट्स अ गुड बैलेंस्ड काउंसिल, देयर इज अ ब्लेंड ऑफ यंग ब्लड लाइक यू and even there is a people who are very experienced, more experienced, so it is a good balanced council, right? एब्सोल्युटली। आप देखिए वी हैव फैंटास्टिक लीडर्स। जय भाई आपने उनको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, ही हिमसेल्फ हैज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एट द ब्रांच, बीइंग एट द रीजन, एंड देन इनका 3rd टर्म है ये सेंट्रल काउंसिल में। तो ही हैज बीन लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। उनका बहुत गाइडेंस मुझे रहा है, पूरी काउंसिल को रहा है। आपके यहाँ से जो रीजनल काउंसिल में भी हैं, बालकिशन जी हैं, तो वो भी ब्रांच से होके वहां आए हैं। हार्दिक भाई हैड आल्सो बीन
एंड द ब्रांच एंड गॉन इन द रीजन. सो गुजरात से मोटा मोटी हम बात करें तो अच्छे एक्सपीरियंस लीडर्स ऑलवेज गए हैं. एंड जो आपने कहा, यस, बोथ प्लेसेस एट रीजन एंड एट सेंट्रल एक बहुत बढ़िया मिक्स है अभी ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस बोथ. और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं इंस्टीट्यूट में, सेल्फ सर्विस पोर्टल हो, जिससे आज हमने वो पूरा जो बात की मेंबरशिप एप्लीकेशन के प्रोसेस की पूरी ऑनलाइन हो गई है, आर्टिकल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया है, फर्म नेम पूरा ऑनलाइन हो गया है. सो ये पूरा ऑनलाइन हो गया. आज हम डिजिटल लर्निंग हब लेके आए हैं, पूरे कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन हो रही है. सो वी आर एट इंस्टीट्यूट, मैं ऐसा कहूंगा इस साल तो खास करके हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के या शायद 2 कदम आगे चल रहे हैं. जो हमेशा हम पहले पीछे चलने की बात करते थे, आज वेबिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, लर्निंग हो, आई थिंक इस 2 महीने के समय में लॉकडाउन में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो लॉकडाउन मेंटली नहीं रहा है. उसको पूरी अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूट ने दी है, इतना मैं पक्का कहूंगा. And this is our also 10th session. We have conducted 9 Instagram live. And जो टॉपिक्स हमने उठाए हैं इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर सर, वी हैव टेकन अ वेराइटीज ऑफ टॉपिक लाइक अपॉर्चुनिटीज फॉर सीए इन कनाडा, एमएस एक्सेल, ऑटोमेशन ऑफ द सीए ऑफिस. कल अनिल सर के साथ जो हमने बात की अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. जय सर के साथ जो हमारी बात की, दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ, म्यूजिक, पेंटिंग एंड वेराइटी ऑफ सेशंस वी हैव डन ऑन द इंस्टाग्राम. फैंटास्टिक. नहीं, आई हैव आल्सो बीन फॉलोइंग इट केवल वेरी क्लोजली एंड डियरली. आई थिंक बहुत अच्छा एक आपने ये पहल की है, शुरुआत की है. इट्स अ ग्रेट फॉर्म जहां इंटरैक्ट आप फ्रीली कर रहे हो. देयर इज नो स्ट्रक्चर टू दी कॉन्वर्जेशन, जिसे हम जनरली कॉन्फ्रेंसेस में बोलते हैं कि 3 मिनट ये बोलेंगे, 7 मिनट ये बोलेंगे. ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. फ्री विलिंग आपने करने का ट्राई किया है. और मोर इम्पोर्टेंटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, किसी के सवाल जवाब हो तो उसका भी अपने ट्राई करेंगे कि टू द बेस्ट ऑफ आवर कम्युनिटी आंसर दे. यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन रिलेशन में, इसलिए मैं अभी पूछ लेता हूँ. समवन क्वेश्चन कि सर ने आर्टिकलशिप कहाँ से की थी? सो मैंने आर्टिकलशिप मुंबई जाके की, लवलॉक एंड लुइस जो एक नेटवर्क फर्म है पीडब्ल्यूसी का, वहां गया. ये भी अच्छी कहानी है, बताऊं तो मैं यूनिवर्सिटी में था, गुजरात यूनिवर्सिटी. आई अपीयर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर किया, बोथ टाइम विद गॉड्स ग्रेस यूनिवर्सिटी रैंकर था, कॉलेज में भी टॉप किया, एचएल में था. तो सोचा यार अभी इंटर क्लियर हो गया है, और हमारे टाइम P2 था और आर्टिकलशिप P2 के बाद ही होती थी. तो मैंने सोचा चलो हम बॉम्बे ट्राई करते हैं. एंड बॉम्बे में अप्लाई किया, रैंक होल्डर थे तो कॉलेज में भी ट्रांसफर मिल गया, वरना डिफिकल्ट रहता है मिडिल ऑफ द ईयर कॉमर्स में एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाना. और आर्टिकलशिप फिर वहां लवलॉक एंड लुइस में की, जो आज प्राइस वाटर हाउस का ग्रुप कंपनी है, उसकी फर्म है. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला. हॉस्टल में खुद रहा, खुद ट्राई किया कि नहीं अहमदाबाद में रहेंगे तो खुद की ऑफिस में जाएंगे तो शायद काफी चीजें अपने को लग्जरी में मिलेंगी. वेंट टू दैट फर्म, काफी सारा सीखा. और आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी की तरफ जो झुकाव आता है मुंबई जाने की वजह से, इन बड़ी फर्म में काम करने के कारण ही होता है. यस यस, टोटली एग्री. हाँ सर, अपने अपॉर्चुनिटीज फॉर सीए के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं. सम अनचार्टर्ड एवेन्यूज, कि जहां पे ज्यादातर सीए सोचते नहीं है या बहुत कम सीए उस एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं. सो उस एरियाज के ऊपर जो आज अपने बात करने वाले हैं, वहीं से अपने शुरू करते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन, लाइक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, you have been a traveler and you have been traveling to various countries all over the world, so you are quite aware about the international opportunities. Sir, what kind of opportunities a CA can have in abroad as well as sitting into India? If anybody wants to get some work from outside of the India, outsource पे काम अगर लेना है तो how they can get? So what are the opportunities? I think fantastic question. You've very rightly picked up. मैंने आपको शुरू में भी कहा था, जब मैं प्रैक्टिस में गया ना केवल, तो मैंने डिसाइड किया कि ट्रेडिशनल एरिया में फोकस नहीं करना है. तो आई थिंक 2008 में मैंने क्लियर किया, और उसी समय में समर में फिर मैं चला गया यूएस. और मैंने सोचा कि कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं. और हम जब आर्टिकलशिप करते थे या सीए कोर्स के बारे में पढ़ते थे, लोग बोलते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनेशनल कोर्स है भैया, सब जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पेक्ट है, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो दे विल ऑलवेज से कि नहीं यार इंडिया का सीए है तो सीपीए से, बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या शायद इंग्लैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज्यादा स्मार्ट रहते हैं, बिकॉज हमारा कोर्स जेन्युइनली उन सबसे टफ है. तो मैंने बोला लाइए इसको एक्चुअल एक्सपीरियंस करते हैं. और यहाँ जो आपने बताया ना कि इंडिया में यस लोग जानते थे तलाटी एंड तलाटी मेरी फर्म है, या अनिकेत तलाटी, सुनील तलाटी को. तो यहाँ अगर आप बोलोगे कि आपको आपका रेफरेंस मिला तो ठीक था. न्यूयॉर्क में तो भैया तलाटी लिखो, शाह लिखो, पटेल लिखो, या कोई और सरनेम लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. वहां जैक और जॉन से डील करना है आपको. तो सर चले गए
और काफी फर्म्स में मिले, बातें की। तो कुछ फर्म्स में मैंने बताया कि सर ये आप क्या काम करते हैं। तो मेरे को पहले से रियल एस्टेट में रुचि थी, आपने देखा होगा मैं रेरा में भी काफी काम करता हूँ। तो मैंने बोला कि ये यस। रियल एस्टेट की फर्म है, हम ट्राई करते हैं कि अगर कुछ पॉसिबल हो तो मुझे काम मिल सके। तो उन्होंने बोला हम हर साल इंडिया के, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया की फर्म से कुछ ना कुछ लोग यहाँ बुलाते हैं, एंड दे हेल्प अस इन कंसल्टिंग एंड डूइंग वर्क फॉर अ रियल एस्टेट क्लाइंट्स। तो ओके। मैंने सोचा चलो ये काम करने जैसा है, एंड आई एम शेयरिंग विथ यू माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ताकि यहाँ जो अटेंड कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिले, कुछ प्रोत्साहन मिले कि हम भी कुछ कर पाए। तो गए, उन्होंने बोला ठीक है भैया आप आइए। तो 2009 में नया हम्म। नया सीए क्लियर किया था, और जनवरी महीने में मैं यूएस पहुंच गया, और 3 महीना मैंने उस फर्म में रह के काम किया। हम्म। काम किया, पूरे मन से किया। काफी चैलेंजेस भी आए, કેમકે સિમ્પલ દાખલો આપું તો આપણે ઘણીવાર કોઈને પૂછીએ તો કે તમે આ एंट्री, नानो एग्जांपल આપું છું, પણ कल्चरल નો जो શું फर्क पड़ता है, कल्चर का क्या फर्क पड़ता है, उसका एग्जांपल देता हूँ। हमने यहाँ बोल हम्म। दिया कि भैया आप ये एंट्री पास कर दो, ठीक है। हम्म। आप आर्टिकलशिप में जाते हो, आप अपने बॉस को बोलते हो सर मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दी। वैसे ही मैं गया, मैंने बोला सर एक क्लाइंट के बुक से ये डेप्रिसिएशन की एंट्री गलत है, तो $3 मिलियन की मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। चलो हम्म। सीपीए खड़ा हो गया उसकी कुर्सी से, व्हाट, सर आई एम पासिंग दिस एंट्री। व्हाट यू आर पासिंग? सी इन द यूएस व्हेन वी से आई पास, उसका मतलब होता है मैं जाने दे रहा हूँ। कोई आपको पूछता है मेरे घर आओगे, आप बोलोगे आई लेट इट पास, इसका मतलब जाने दिया। तो उसको ऐसा लगा कि ये $3 मिलियन की एंट्री में पास कर रहा हूँ। फिर उसने बोला नो 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 डोंट पास, यू आर सपोज टू रिकॉर्ड इट। तब जाके मुझे स्ट्राइक हुआ कि अपने कह तो वही रहे थे, पर कहने का हाँ। अंदाज और भाषा समझने का तरीका अलग होता है। और इसके हम्म। वजह से समझिए, चलो ये कल्चरल डिफरेंस है, पर मेहनत किया, सीखने का ट्राई किया। काफी टर्म्स जो हम यूज करते हैं वो नहीं करते हैं, या अलग तरीके से करते हैं। काम हम्म। हुआ, 3 महीने खत्म हुए, फिर मालूम नहीं था कैसा होगा। तो फर्म ने बोला नहीं यार आपका काम हमें अच्छा लगा, आप और इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके साथ ला सकते हैं। तो 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए। आज 20 से 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट हर साल हमारे वहां से यूएस जा रहे हैं, और मैं ये बहुत बढ़िया काम करता हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप में से किसी ने कर ली, आपको इंडिया की प्रैक्टिस, दिल से बता रहा हूँ, करने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज दैट मच अपॉर्चुनिटी दैट लाइज इन दिस फॉरेन लैंड्स। तो ये तो बात हो गई वहां जाके काम करने की। फिर हम्म। 5-7 साल और काम किया केवल जी, तो हम्म। सोचा कि यार वहां बैठ के काम कर रहा हूँ, वही काम हम इंडिया से क्यों नहीं कर सकते। फर्म्स में पहले तो शुरुआत में थोड़ा रहता है ना, सिक्योरिटी, डेटा कैसे शिफ्ट होगा, चोरी हो हम्म। जाएगा तो। और इंडिया का नाम यू नो दैट स्ट्रांगली वो लोग नहीं ले रहे थे अकाउंटिंग के लिए, पर अपने ने अपने हम्म। काम से काम करके दिखाया। तो उन्होंने अपने को काम दिया, आज आउटसोर्स करते हैं तो वहां भी लोग जाके काम करते हैं, यहाँ से भी हम हम्म। काम करते हैं। तो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, नॉट जस्ट गोइंग टू डिफरेंट jurisdiction बट ऑल्सो टेकिंग वर्क फ्रॉम डिफरेंट jurisdiction। और ये यूएस हम्म। हुआ, वैसे ही यूके का मार्केट है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया हम्म। का मार्केट है। तो मैं ये पूरे प्रोसेस से, मेरी पूरी स्टोरी से एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई क्या करना है, शायद आपको पहली अपॉर्चुनिटी में काम ना मिले, आपको 10 दरवाजे हम्म। में नॉक करना है। बट एज चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं बैठा रहूं, सिर्फ हम्म। एम्पैनलमेंट का फॉर्म भरूं, और मुझे हम्म। बैंक ऑडिट आए, मुझे स्टॉक ऑडिट आए, मुझे दुनिया की सारे ऑडिट आ जाए, और मैं फिर हम्म। भी किसी चीज के लिए मेहनत ना करूं, तो भैया आपका काम, आपकी प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। बट अगर मैं हम्म। कुछ नया सोचता हूँ, और नए हम्म। करने की मेरे में हिम्मत है, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप तो हम्म। सूरत से हो, इट्स अ वेरी इंडस्ट्रियल टाउन, यू नो देयर इज द बिगेस्ट टेक्सटाइल सेंटर, डायमंड। हर धंधे में हम तो हमारे क्लाइंट के वहां भी देखते हैं ना भैया, पहले वो कैपिटल, सबसे पहले आपके पास कंपनी फॉर्म करने आता है, आप बोलते हो तो शेयर हम्म। कैपिटल के लिए ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा, उसका पैसा भर, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर, और फिर वो धंधा शुरू करता है। शायद फिक्स्ड हम्म। एसेट लेगा, इन्वेंट्री लेगा। और हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं भैया पहले काम आएगा, फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो समवेयर हम्म। हमें इस सोच को बदलना है, टू एक्सपेक्ट के काम पहले या इन्वेस्टमेंट पहले। आई बिलीव जमाना चेंज हो गया है, अभी यस। जरूर हमें पहले इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर हम हम्म। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, थोड़ा पेशेंस हम्म। रखने को तैयार है, और हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेहनत करने को तैयार है कि हम्म। एक ही जुरिस्डिक्शन में इंडिया में रह के काम नहीं करना है, मुझे हम्म। अफ्रीका एक्सप्लोर करना है। मैं आपको आज हम्म। बताता हूँ, अफ्रीका इतना बड़ा मार्केट है कि सूरत के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम मिलकर अगर अफ्रीका का काम कर लेना, तो भी लोग कम हाँ। पड़ेंगे। बट क्या हम में वो हिम्मत है कि हम जाएं अफ्रीका में, जाके वहां काम ढूंढे, इम्प्लीमेंट करें। मैं बहुत सरप्राइज था केवल जी, मैं आपको मेरी खुद की बात कर रहा हूँ। मैं जा रहा था यूरोप, तो मेरा फ्लाइट थी वाया मिडल ईस्ट। आज तो जानते हो
सारी फ्लाइट्स या दुबई या कतार या दोहा होके जाती है, कहीं भी जाना हो। तो उस फ्लाइट में मेरे साथ मुझे 3-4 और सीए मिल गए मुंबई के, अभी उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैं बैठ रहा था पीछे जाके इकोनॉमी में, और ये 3 सीए, मुझे दिल से आज गर्व होता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है ना मैं 2000 स्क्वायर फुट की 5000 स्क्वायर फुट की ऑफिस ली, मेरे मन से ऐसा ही निकलता है भगवान करे 2 साल में ऑफिस छोटी हो और तुझे और बड़ी ऑफिस लेनी पड़े। तो वो 3 सीए जाके बिजनेस क्लास में बैठे, मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तीनों के तीन अफ्रीका जा रहे थे। बोले सर इतना बढ़िया काम है, एसएपी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, बढ़िया लाइफ है, बढ़िया पैसा मिल रहा है, और आप सोचो बिजनेस क्लास में घूम रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उनमें ये कैपेसिटी है या सोच है बाहर जाके काम करने की। तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस की आपने बात की, तो समराइज करूंगा, बहुत वहां जाके काम करिए, अफ्रीका जाइए, यूएस जाइए, वहां से यहाँ काम लाके यहाँ एग्जीक्यूट करिए, उस जिसे हम आउटसोर्सिंग, केपीओ, बीपीओ कहते हैं। ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी सभी मार्केट में है। और आज खास करके जब हम लॉकडाउन, कोविड और कोरोना वायरस के जमाने में है, आपको तो वहां जाके ऑस्ट्रेलिया के सीपीए को एक ही चीज बतानी है कि भाई तुम्हारा एम्प्लॉय आज 50 किलोमीटर दूर उसके घर से काम कर रहा है, मैं 5000 किलोमीटर दूर से काम करूंगा, उससे दुगना काम करूंगा, उससे 5 गुनी अच्छी क्वालिटी का काम करूंगा, और उससे आधे भाव में करूंगा, तो वो आपको काम क्यों नहीं देगा? देयर इज नो रीजन ही विल नॉट गिव द वर्क। हम सिर्फ इसके बारे में सोचते नहीं है। तो अगर आपने सोचना शुरू किया तो बहुत मार्केट्स हैं एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने आपको बताया वैसे वहां जाके काम करो, आउटसोर्स करो, या इनबाउंड आउटबाउंड। आप एक बार वहां का कायदा सीख गए और कल उठ के आपके क्लाइंट को अफ्रीका में कंपनी बनानी है, तो आप उस पर कंसल्टेंसी कर सकते हैं। वहां कौन सी कंपनीज है, किस फॉर्म में काम होता है, आप उसके बारे में उन्हें सिखाइए, उनका कंसल्टिंग कीजिए। या वहां से किसी कंपनी को यहाँ आना है, तो हमें तो यहाँ की एलएलपी, कंपनीज एक्ट सब अच्छे से आता है। तो 4 एवेन्यू खुलते हैं आपके लिए, 4 अलग अलग प्रकार के एवेन्यू। वहां जाके काम करना, यहाँ काम लाना, यहाँ की कंपनियों को वहां भेजना, और वहां की कंपनी यहाँ आ सके, जिसे हम इनबाउंड आउटबाउंड इन्वेस्ट। व्यूअर्स। यस केवल जी, कैन यू सी मी? यस। प्रॉब्लम कहाँ से था, आपकी तरफ से था कि मेरी तरफ से था कुछ? आई थिंक मुझे तो सब नीचे दिख रहा था, आपका सर्कल घूम रहा था, पता नहीं जहां था बॉस। अभी देखो ये टेक्नोलॉजी है, इसके साथ जीना है। यस, बट आई गेस यू हैव समराइज्ड द थिंग्स इन अ वेरी वेल वे। सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर हमने इंडिया का अंदर से हमने सीए तो खत्म कर दिया है, एंड नाउ व्हेन वी आर गोइंग आउटसाइड इंडिया टू गेट द वर्क, तो सर कहीं पे भी कुछ और एडिशनल पढ़ाई की या कुछ और एडिशनल एक्सपीरियंस की जरूरत है कि इट्स इनफ? यस। सो देखो, मैं आपको मेरी बात करूं तो मैंने ना यूएस का सीपीए किया है, ना मेरी कोई टीम में से किसी ने यूएस का सीपीए, हाँ एक दो जन ने एकेडमिक इंटरेस्ट की वजह से सीपीए किया है। आपको पढ़ने की जरूरत है। पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, आप टैक्स का काम छोड़ दीजिए, कंसल्टिंग का काम छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ अकाउंटिंग का काम करना है, तो भैया डेबिट तो इंडिया में भी डेबिट है, यूएस में भी डेबिट है, यूके में भी डेबिट है। सिर्फ क्या होता है, यूएस गैप आज यूएस में चल रहा है, बाकी सब जगह तो आईएफआरएस है, और हम सबको इंडियस एप्लीकेशन सीख गए हैं। द स्टैंडर्ड्स रिमेन लार्जली द सेम। और दूसरी बात बताऊं तो जिस एंटिटीज का आपके पास आउटसोर्सिंग का काम आएगा, वो शायद आईएफआरएस पे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होंगी नहीं, वो लोकल स्टैंडर्ड्स पे होती हैं, जो बाय एंड लार्ज आर वेरी सिमिलर टू आवर स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग अगर क्लैरिटी है आप में कॉन्सेप्ट की, आपको मालूम है कि भैया मैं लेजर देख रहा हूँ एक्सपेंस का, तो 12 महीने की 12 एंट्री होनी चाहिए। ओपनिंग में अगर रिवर्स प्रोविजन किया था, उसका रिवर्सल आ रहा है, तो क्लोजिंग में भी प्रोविजन होना चाहिए। ये बेसिक अकाउंटिंग अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो मैं मानता हूँ आपके लिए किसी भी कंट्री का आउटसोर्सिंग का काम या वहां जाके काम करने के लिए कोई एडिशनल डिग्री की जरूरत नहीं है। और अगर करना है, मैं आपको आई एम सो हैप्पी टू शेयर विथ यू, इंस्टीट्यूट की खुद 4 चैप्टर्स हैं, अटैक देम। यस।
हमारा खुद का इंटरनेशनल अफेयर्स का डिवीजन है, आप उनसे बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे। और इस साल हमारा एक्सट्रीमली एम्बिशियस टारगेट है, आई एम श्योर हम उसे पूरा कर पाएंगे। हमें 100 और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। तो सिर्फ जो 34 हमारी चैप्टर्स है उससे हमें काम नहीं चलाना है, हम 100 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, सब जगह पे। और जो अगर वो हो गया तो हमारे मेंबर्स के पास हमारी खुद की इंस्टीट्यूट की ऑफिस उन जगहों पे होंगी। ओह दैट्स ग्रेट। और ये शायद तक पहली बार ऐसा होगा। यस, हम ट्रूली चाहते हैं। केवल जी, आप मेरा ड्रीम अगर पूछो तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे 3.5 लाख में से 1.25 लाख से 1.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है। इन 1.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मेरा सपना ये है कि इनमें से 50 से 60 हजार लोग, हजार मेंबर की 50 से 60 बड़ी फर्म बनाए। आज 100 सीए की पॉसिबल है, 100 सीए की फर्म बनाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ये प्रोप्राइटर माइंडसेट से निकाल के अगर हम तैयार होते हैं तो हम बड़ी 50 फर्म बनाएं। और दूसरा, हमारी फर्म का टारगेट एक ही रखें कि जितनी मेरी रिसीट है, अगर 20 लाख की रिसीट है तो 10 लाख इंडिया ऑपरेशंस और 10 लाख फॉरेन ऑपरेशन से आए। ये जो अगर हम टारगेट रख के आगे काम करेंगे, मैं नहीं मानता हूं कि हमें कोई भी रोक सकता है एक्सपोर्ट में, फॉरेन से। और आप अपनी कंट्री के लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इटसेल्फ वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ सीए सर्विसेज, और अगर हम ये कर पाए डेफिनेटली इट विल बी ह्यूज। इंस्टीट्यूट से तो पक्का ट्राई करेंगे। आपने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात, उसके अलावा फॉरेन में सॉफ्टवेयर रहते हैं, जीरो है, क्विक बुक्स ऑनलाइन है, इन सभी की ट्रेनिंग भी हम देना चाह रहे हैं। इनफैक्ट फॉरेन लैंग्वेजेस तो हम अभी भी सिखा रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, 25 से 30 बैच अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस में आज की तारीख में इंस्टीट्यूट में चल रही है। कोई स्पेनिश सीख रहा है, कोई चाइनीज सीख रहा है, कोई इटालियन सीख रहा है, ये सब इंस्टीट्यूट कर रहा है। कितनों को आइडिया है और कौन इसके बारे में एक्सप्लोर कर रहा है। आई थिंक वही सैड पार्ट है कि हम शायद बाकी चीजों में तो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं, हमारी खुद की इंस्टीट्यूट क्या कर रही है वो शायद नहीं देख रहे हैं। यस यस यस, नहीं पर ये शायद तक कन्वर्सेशन बहुत काम का कन्वर्सेशन हो रहा है अपना, और आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो शायद तक मुझे भी पता नहीं था और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं पता होगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी से जरा आगे बढ़ते हैं एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, सर योर फर्म इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म अमंग द बिगेस्ट फर्म ऑफ द गुजरात, तलाटी एंड तलाटी। सर, इतनी बड़ी कंपनी है अगर आपकी, तो हाउ डू यू मैनेज द क्लाइंट्स? इतने सारे क्लाइंट्स के कॉम्प्लायंस के डेट्स वगैरह आते होंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच यू हैव एम्प्लॉयड इन योर कंपनी, इफ एनीथिंग, एनी सॉफ्टवेयर, एनीथिंग विच यू कैन शेयर? थैंक यू सो मच केवल फॉर दैट क्वेश्चन अगेन, क्योंकि ये अगेन एक टॉपिक ऐसा है जो मेरे दिल के काफी करीब है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमें हमारी फर्म का जो स्ट्रक्चर है, जितना भी छोटा हो, उसमें अगर सिस्टम या प्रोसेस होंगे तो हम उसे इवेंचुअली बड़ा कर सकते हैं। यू नो, इफ यू हैव फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ ना, तो बिल्डिंग जितनी भी ऊंची करनी है, एफएसआई बढ़ता है तो आप 4 माल और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर फाउंडेशन कच्चा होगा ना बॉस, तो आपकी 3 माल की बिल्डिंग 3 माल की रह जाएगी, आजू बाजू बड़े बड़े टावर बन जाएंगे। तो ये कैसे बनता है? इसके लिए इंस्टीट्यूट से मैं अगर बात करूं पहले, बिकॉज ये इसमें काफी रिसर्च हमने किया है। एक टूल है DCMM, शायद मेजॉरिटी लोगों ने सुना भी नहीं होगा, डिजिटल कॉम्पिटेंस मैच्योरिटी मॉडल। इसका वर्जन 2.0 इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, जो एक सेल्फ असेसमेंट टूल है। क्या है? केवल जी की फर्म है, केवल जी लॉगिन करें, उसमें सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल क्या है? क्या केवल जी आपकी वेबसाइट है? आप बोलेंगे है तो 1 मार्क, नहीं है तो 0 मार्क। आपका खुद का डोमेन है? आपका ईमेल एड्रेस है जिसमें आपकी फर्म का नाम है? क्योंकि केवल@gmail लिखो और केवल@kevalshah.com लिखो, यू योरसेल्फ नो कितना बड़ा डिफरेंस पड़ सकता है। और इसका कॉस्ट क्या है? GoDaddy पे जाके आपको अगर वेबसाइट और डोमेन लेनी है, 500-700 रुपए में आपका डोमेन बनता है। ईमेल होस्टिंग चाहिए, साल का 2000 रुपए का कॉस्ट है। आज अगर हम सोचे कि नहीं, सभी पैसा, मैंने आपको शुरू में ही बताया, आज हम ऑफिस पे पैसा खर्च कर लेते हैं, इंटीरियर पे कर लेते हैं, आईटी समवेयर अगर हम नहीं खर्चा करेंगे, एंड आई थिंक हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी की सर्विस की वैल्यू नहीं समझेंगे, हम किसी की सर्विस सेक्टर में रहते हुए लोगों की वैल्यू नहीं करेंगे, तो हाउ आवर क्लाइंट्स विल वैल्यू आवरसेल्व्स? तो एक तो हमें इन चीजों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, DCMM 2.0 में इसका डिटेल गाइडलाइंस दिया है, आप सवाल तो दीजिए, साथ में गाइडेंस भी है। और आपने मेरी फर्म की जो बात की, वहां मैं कैसे ट्रैक करता हूँ, तो मैंने एक ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर ही लिया हुआ है। नाम नहीं लेना ठीक रहेगा, पर बहुत सारे मिलते हैं, आप मार्केट में देख लीजिए जो फर्म मैनेजमेंट के टूल्स हैं। देयर आर 5-7 डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आपकी फर्म के हिसाब से
आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है आप उसको यूज करिए। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने तो 3-4 के साथ टाइप किया हुआ है कि आपको फ्री दे रहा है इनिशियल 3 इयर्स के लिए। तो आप उसमें से कोई एक ओके। प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, दे आर ऑल इक्वली गुड। और उसमें आपका जो पूरा प्रोसेस फ्लो है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी शुरुआत हम्म। से क्लाइंट आता है, ऑनबोर्डिंग करता है, से लेके लास्ट में आप उसको इनवॉइस करना है, उसका पूरा प्रोसेस मैप होता है। इससे क्या होगा केवल जी, आपकी मेरी सबकी फर्म में अपने ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया है कि यार ये क्लाइंट का काम तो कर लिया, बिल रह गया, हम्म। या उसका बिलिंग मैंने ठीक किया, मेरा कितना टाइम गया, मेरे बंदों का कितना टाइम गया, मेरे पास कुछ घंटे हम्म। का अगर हिसाब ही नहीं है, मैं क्लाइंट के पास हम्म। जाता हूँ और बोलता हूँ अरे नहीं भाई, यानी 15,000 फी आप ही दे जाओ दोस्त। अब 15,000 हम्म। केम था, પણ જો તમારી પાસે એક टाइम शीट હશે અને आप उसको हम्म। जाके वो टाइम शीट दिखा सकते हो कि भैया मेरे 3 हम्म। आर्टिकल ने इतना समय दिया है, उसके बाद मैंने खुद ने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस सर्टिफिकेट में ये चेंजेस करने के लिए इतना समय दिया था और इतना हम्म। मेरा टाइम गया है, कौन हम्म। सा क्लाइंट ना बोल पाएगा। और मैं 100% आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, इससे मेरी फीस में तो मैं रियलाइजेशन बढ़ा पाया हूँ, बिकॉज मेरे पास अब साइंटिफिक बेसिस है क्लाइंट से फीस चार्ज करने का। और ऐसा मत सोचो कि ये यस। बड़ी फर्म है ये तो कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। भैया जो आप चीज खरीदते हो, अगर कोलगेट का टूथपेस्ट आप अमेजोन से खरीदते हो या बगल वाले किराने हम्म। से, भाव तो सेम ही रहता है। किराना वाले यस। को सिर्फ आदत है उसका एमआरपी बोलने की। हम शायद काफी बार अपने आप को, सॉरी टू से इट, पर हमारे समय को, क्योंकि हम खुद को तो नहीं बेच रहे हैं, बट हम सब एक हम्म। चीज जरूर बेच रहे हैं, वो समय है हमारा। टाइम इज आवर इन्वेंट्री। और अगर हम हमारे समय की यस। कीमत नहीं करेंगे तो दूसरा अगला हम्म। आदमी कैसे करेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम अगर हमारे में साइंटिफिकली हम इसे समझना शुरू कर दें, इसे रिकॉर्ड हम्म। करना चालू कर दे इन ऑफिस मैनेजमेंट टूल से, तो मैं जरूर मानता हूं कि हम सबकी रिसीट अच्छी होगी। जो फीस कम है लोग बोलते हैं, वो प्रॉब्लम लार्ज एक्सटेंट तक सॉल्व हो सकता है। और आई गेस आपने जो बोला वो बहुत अच्छा एक बेस भी बन जाएगा फॉर द बिलिंग फॉर द डिफरेंट क्लाइंट्स एंड देयर विल बी वेरी मच क्लैरिटी इन द फॉर्म कि भाई इतना है तो इतना होता है। एब्सोल्युटली सर, मैं आपको एक बात बताऊं, केवल जी, हमने इंस्टीट्यूट में इस साल एक टेंडर मॉनिटरिंग ग्रुप, एक्चुअली लास्ट ईयर जय भाई की लीडरशिप में ये शुरू हुआ था, इस साल इसकी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम्म। काफी बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं कि सर इतना बड़ा टेंडर, ये सीए 10,000 रुपए 15,000 रुपए महीने में ले गया। इन सभी हम्म। केसेस में हम अभी कॉस्ट शीट फर्म से मंगा रहे हैं। और अगर हमें लगता है, और हमने ऑलरेडी 10 केस तो डिसिप्लिनरी में भेज दिए हैं, जहां लोगों ने अच्छा। 1,000 रुपए और 1,500 रुपए में के कोई क्लाइंट का काम एक्सेप्ट कर लिया था, उन सभी पे अभी डिसिप्लिनरी एक्शन हमने लेना शुरू कर दिया है। सो दैट इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो प्रोएक्टिवली आस्किंग फॉर दिस डिटेल्स। तो हम सबके इंटरेस्ट में है कि हम टाइम शीट बनाएं। और अगर हम्म। फी का लेवल बढ़ता है तो आपका और हम्म। मेरा, या केवल या अनिकेत का नहीं बढ़ेगा, ये पूरे फ्रेटर्निटी का, पूरे प्रोफेशन का बढ़ेगा। आई थिंक ये माइंडसेट यस। अगर हम रखें तो हम्म। डेफिनेटली एक चीज है कि हम सब अपने लिए और पूरी कम्युनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो डेफिनेटली मैं यस। ऐसा मानता हूँ, देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। टाइम मैनेजमेंट अगर हम ठीक से करें और अगर उसका हम्म। रिकॉर्ड रखेंगे तो फीस तो बढ़ेगी, कंप्लायंस भी अच्छा होगा। यस। वेरी गुड पॉइंट सर। हाँ सर, फॉर्म से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कोविड के टाइम पे हमने देखा स्टॉक मार्केट रोज का एक नए नए रिकॉर्ड ब्रेक करता जा रहा था। ठीक है। एंड स्टॉक मार्केट की हमने रोलर कोस्टर राइड भी देखी है। तो मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द सीए व्हेन इट कम्स टू कैपिटल मार्केट? सो कैपिटल मार्केट्स अगेन ह्यूज फील्ड। यहाँ पे मैं इतना बोलूंगा कि हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो प्रैक्टिस में है, उनके लिए तो शायद द अपॉर्चुनिटीज में भी लिमिटेड, बिकॉज एनएवी सर्टिफिकेशन ये सारा जो काम है वो मुंबई से ज्यादा होता है। सो वो कैपिटल मार्केट रिलेटेड सर्विसेज हैं जो वहां से हो रही हैं। बट बहुत बड़े जो काम आप खुद कर सकते हो, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की बात करूं तो आप इन सभी जो भी एनएससी, बीएससी या इवन कमोडिटीज एक्सचेंजेस में लिस्टेड ब्रोकर्स हैं, इनका ऑडिट होता है। इनका ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होता है, एक सिस्टम ऑडिट करना है। तो अगर हम अपने में आईटी टूल्स सीख लें, अगर हम ना डीसा इसीलिए करें इंस्टीट्यूट का कि हमें बैंक ऑडिट मिले, पर एक्चुअली डीसा में क्या टेक्नोलॉजी में आप उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आपको क्या वैल्यू एडिशन देना है, आप नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हो, आप क्लाइंट डेटा की इंटेग्रिटी कैसे असरटेन कर रहे हो और इंश्योर कर रहे हो कि ब्रोकर के वहां इसका कोई ब्रीच नहीं होता है। अगर ये बातें अगर हम अच्छे से समझ सकते हैं पहले, और ना ही मैंने ऐसे से बताया डीसा या सीसा सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं, पर उसका क्रक्स समझने के लिए अगर हम करते हैं, तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी लाइज इन सभी एक्सचेंजेस में अपनी ऑडिट सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, आईटी सर्विस ऑडिट करने में हम दे सकते हैं। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडस्ट्री में जा रहे हैं,
आई थिंक इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। द एंटायर स्टॉक मार्केट, आप राकेश झुनझुनवाला को देखिए, या टेलीविजन पे जो आते हैं, आज आप देखोगे जी न्यूज पे आता है, जो उनके एडिटर्स हैं, जो उनके प्रेजेंटर्स हैं, और इनफैक्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं इन मार्केट्स में, दे आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बिकॉज हमारे लिए अकाउंट्स, फाइनेंस तो समथिंग दैट वी कैन डू इवन इन आवर स्लीप। हम हमारे नींद में भी नंबर्स क्रंचिंग कर सकते हैं। आई थिंक कैपिटल मार्केट्स नेचुरल चॉइस है हमारे लिए। एंड नाउ इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट एज अ अपॉर्चुनिटी, फिक्स डिपॉजिट का रेट देखो लास्ट 1 साल में कितना कम आ गया है। अब गवर्नमेंट का यील्ड का रेट देखो, पीएफ का रेट देखो, दे आर ऑल ऑन द डिक्लाइन। तब पीपल आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस कैश, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग मेजरली इन द कैपिटल मार्केट्स। और वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत बहुत है। आज फंड मैनेजर्स देखिए, फंड मैनेजर्स जहां बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स में सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हाँ, स्टैंडर्ड ट्रैक जहां हमारा प्रिंसिपल काम कर रहा था वही काम मुझे करना है, अगर उस एटीट्यूड से हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर आगे बढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। पर अगर हमें ये हमारा विंडशील्ड खोलना है, हमारा साइड ब्लॉक खोलना है, और अगर हम आजू बाजू देखने को तैयार हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इवन द कैपिटल मार्केट। Yes, and the thing which you said, there is to be more focus on value addition rather than going with the degrees. That if you provide more value, then obviously there is a huge scope. Absolutely, absolutely. You cannot just look at it as a some letters that you put after your name. उसमें सब्सटेंस से अगर आपने इसको सीखा, समझा, और सब्सटेंस से अगर आप उस पर काम कर सकते हैं। कल अनिल भाई से आपने सीखा, वो इतना बड़ा कंपनी, इतनी बड़ी साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ही हैज नॉट जस्ट अंडरस्टूड दिस टेक्नोलॉजी, उसको पूरा अपने अंदर पूरा समावेश करके, उसका एक्सपीरियंस करके फिर उसकी कंसल्टिंग कर रहे हैं। वो अगर वो कर सकते हैं, आई एम श्योर हम में से काफी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कर पाएंगे। यस, एंड आप तो आज आए हो, लेकिन आपके साथ आप पूरे कुदरत को लेके आए हो, जो हमको बहुत अच्छा व्यू दे रही है पीछे से। नहीं, मैंने सोचा कि रूम में बैठ के व्हाइट बैकग्राउंड के पीछे या इंस्टीट्यूट के बैकग्राउंड के पीछे तो बहुत लेक्चर ले लिए आज। हाँ, थोड़ी गर्मी है, पर ठीक है, मैंने बोला आउटडोर में बैठते, आउटडोर में आपसे खुले मन से फ्रीली डिस्कशन हो पाएगा, और इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर गार्डन में आके आपसे चर्चा करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपके पीछे से, जो बर्ड्स जा रहे हैं उसकी। आई डोंट नो सूरत में कैसा है, पर हमारे वहां तो कल बढ़िया बारिश हो गई, तो इतना सुंदर कल तो हमारा वेदर था। आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड। समर के बीच में एक अच्छा रिस्पाइट मिल गया हम सबको। કેરીઓ ખાવા થોડી ઓછી મળશે કેમ કે વરસાદ પડી ગયો છે। આપણે બધા જે કેરી ખાવાના શોખીન હોઈએ છે, પણ યસ, ગુડ રિસ્પાઇટ फ्रॉम द हीट। यस 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 सर, अपनी बात को जरा आगे लेके जाते हैं। फ्रॉम कैपिटल मार्केट टू द बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपने बात करें, तो सर प्लीज हाईलाइट ऑन द अपॉर्चुनिटीज फॉर द सीए इन बैंकिंग। सो यस, बैंकिंग में ट्रेडिशनल तो हम सब जानते हैं, मैं उसकी बात ज्यादा नहीं करूंगा। कॉन्करेंट ऑडिट हो, बैंक ब्रांच ऑडिट हो, ये तो हम कर ही रहे हैं। बट एक लार्ज अपॉर्चुनिटी जो अभी खुल के आई है, स्पेशली इन द बैंकिंग एरिया, इज ऑन फॉरेंसिक्स। और उस पे हमारे काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोकस सैडली नहीं है, बिकॉज शायद हम समझ नहीं पाए कितना बड़ा इंडस्ट्री है, या फिर हमने ये नहीं समझ पाए कि हम में खुद में ये नेचुरल स्किल है। एज ऑडिटर्स आज हम घर जाते हैं, काफी बार आपको भी सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा, और हम कुछ खाना खाएंगे घर पे बनाया हुआ, तो 1 मिनट में बोलते हैं, अरे यार इसमें आमा मीठું ઓછું છે, કે આમાં આ ઓછું છે। એ કેમ થાય છે? કેમ કે ભૂલ કાઢવી છે ને આપણા સ્વભાવમાં આવી ગઈ છે। આપણને જે ખોટું છે ને એને પકડવું બહુ સહેલું છે, આપણા સ્વભાવમાં આવી ગયું છે। હવે એની સૌથી સારામાં સારો ઉપયોગ થતો હોય કશે તો એ ફોરેન્સિક છે। अगर आप फॉरेंसिक का अगर एरिया देखेंगे, ऑडिट, ट्रेडिशनल ऑडिट तो एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट की, बाकी सब स्टेक होल्डर्स की बढ़ती जा रही है, बट फॉरेंसिक एक ऐसा एरिया है जहां आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, और एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सबसे बढ़िया काम हम कर सकते हैं। इसको इंस्टीट्यूट के अगर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो कल ही हमारी लैब की मीटिंग थी, जो डिजिटल एश्योरेंस बोर्ड है, जिसके अंडर एफएफडी का कोर्स यानी फॉरेंसिक का कोर्स होता है। अभी हम फॉरेंसिक को 5 लेवल में डिवाइड कर रहे हैं। आई जस्ट टेक 2 मिनट्स, पर समझाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत बड़ा फ्यूचर है। फॉरेंसिक अभी तक कैसा था कि आप इंस्टीट्यूट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और एक एफएफडी का कोर्स कर लिया, तो वो एक एडिशनल लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन हो गया। हम अभी इसमें 5 लेवल कर रहे हैं। सबसे पहला लेवल तो हर एक स्टूडेंट को एडवांस आईटीटी के वक्त हम फॉरेंसिक का बेसिक सिखाएंगे, डेटा एनालिटिक्स सिखाएंगे, बिग डेटा को कैसे आप एनालाइज करते हैं, बेनफोर्ड्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं एक्सेल शीट में, क्योंकि ये आपके रेगुलर ऑडिट में भी आप
थोड़ा फॉरेंसिक अप्लाई करना जरूरी है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़ती जा रही है, और इस इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन में हमें थोड़ा हायर लेवल ऑफ ऑडिट अगर सर्विसेज देना है, जब एक्सपेक्टेशन है कि हम सिर्फ सैंपल ना देखें और एक लार्जर पॉपुलेशन पे फोकस करें, तो ये लार्जर पॉपुलेशन पे फोकस करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। मैन्युअली तो हम सारे ट्रांजैक्शंस नहीं देख सकते, तो उसको समझने के लिए हमारे वहां जो आर्टिकल्स भी आएंगे वो इसमें ट्रेंड हो। इसलिए हम लेवल जो कर रहे हैं, दैट फर्स्ट लेवल इज गोइंग टू बी एट द स्टूडेंट लेवल एट एडवांस आईटीटी। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेवल है जो हम कर रहे हैं, वो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमारे डिजिटल लर्निंग हब पे एक ई लर्निंग का कोर्स है, तो आप वो करिए, और आपको उसमें हम बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक्स सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। प्लीज गो देयर एट योर टाइम। कुछ लोगों के पास सुबह में टाइम है, कुछ के पास लेट नाइट में टाइम है, कुछ शायद ऑफिस में भी 2 घंटा निकाल पाते हैं। आप आपके पेस से रजिस्टर करिए और आपके पेस से इस कोर्स को कंप्लीट करिए। ये L2 हो गया। L1 स्टूडेंट, L2 चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑनलाइन करेगा। L3 जो है वो हमारा अभी का FAFD का जो कोर्स है, यानी फॉरेंसिक का कोर्स, जिसे आज की तारीख में 20 से 25 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट कर चुके हैं, और हमारा टारगेट है कि 1 लाख CA फॉरेंसिक के सर्टिफिकेट कोर्स में ट्रेंड हो। तो L3 हो गया फॉरेंसिक। L4 इसमें हम केस स्टडीज करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल एक केस सिनेरियो देंगे और आपको वहां जाके फॉरेंसिक करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी लेवल 4। और लेवल 5 which is the most advanced level केवल is going to be with GFSU, that is the Gujarat Forensic State University। वहां हमने MOU ऑलरेडी कर चुका है। आप वहां आएंगे with for fixed period of days, you will stay at the GFSU, और वहां हम आपको डीपेस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर फॉरेंसिक सिखाएंगे। क्या एग्जांपल दे सकता हूँ, आपका फोन पानी में गिर गया, टूट गया, फूट गया, उसमें से आप डेटा कैसे निकाल सकते हो। किसी ने हार्ड डिस्क लेके जला दी, उस जली हुई हार्ड डिस्क में से भी डेटा कैसे निकाल सकते हो। वो जो लेवल ऑफ फॉरेंसिक है वो हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उस यूनिवर्सिटी में सिखाएंगे, और उससे ना ही आपको इंडिया में एडवांटेज मिलेगा। The Forensic State University of Gujarat has a MOU with 80 different countries. So अगर मलेशिया में फ्रॉड हुआ, सिंगापुर में भी फ्रॉड हुआ, हम चाहते हैं कि अब उसका सोल्यूशन भी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, और उसके लिए हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। सो फॉरेंसिक में ये पांचों के 5 लेवल, बहुत जल्द हम इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे, और ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। Or I guess this is going to be the most important information which you shared with us and with all our viewers. I think there are 50 people who have joined us, and this is going to be one of the most important information which you have shared with us. And I guess जो आपने फोरेंसिक ऑडिट की बात की, पोस्ट कोविड के बाद का जो एरा जो भी अब शुरू होगा, उसमें फोरेंसिक ऑडिट का इंपॉर्टेंस का एक लेवल भी अब बढ़ जाएगा, because the way things are going on, the way things are gone with the businesses, तो I guess इसका इंपॉर्टेंस और भी बहुत बढ़ जाने वाला है। एब्सोल्युटली बढ़ेगा सर, क्योंकि पीपल हैव फेसिंग जेन्युइन बिजनेस चैलेंजेस, और जब चैलेंज होता है, आपने कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो पीपल हु हैव डन देयर बिजनेस इन मोस्ट प्रोबेबली एथिकल मैनर, बट आज जेन्युइन उनको कंसर्न है, उसकी वजह से शायद उनके लिए इंक्लिनेशन होगा कि मैं बुक्स को फर्ज करूं, स्टॉक में कुछ करूं। अगेन मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसा होगा, बट ये एक स्वाभाविक चीज है जो हम सोच सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। और इसको काउंटर करने के लिए फॉरेंसिक, जैसा आपने कहा, इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एरिया। वापस एक बार काफी लोग पूछ रहे हैं, उसके लिए बता रहा हूँ। L1 स्टूडेंट्स, L2 ई लर्निंग है डिजिटल लर्निंग हब पे, L3 हमारा फॉरेंसिक का एग्जिस्टिंग कोर्स, L4 होगा एडवांस केस स्टडीज, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, और L5 है जो गुजरात स्टेट फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU है। ये 5 लेवल है। यस सर, फॉरेंसिक ऑडिट एंड पोस्ट कोविड के एरा से जरा आगे बढ़ते हैं, एंड प्लीज टेल अस सम अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ रेरा। द मास्टर ऑफ रेरा को आपको कहा जाता है, तो सर अबाउट रेरा एंड अबाउट आर्बिट्रेशन। सो लेट मी टेक रियल एस्टेट एज अ होल फर्स्ट, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है केवल जी जहां हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करने में मजा आता है। सर एक इंटरप्शन करूं, एक इंटरप्शन कर रहा हूँ। सर ये जी आप लगाते हो ना, तो वो बात वापस फॉर्मेलिटीज के ऊपर चली जाती है। आपने एक चीज नोट डाउन नहीं की होगी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, ये आपने देखा सेशन के अंदर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली केवल। सो माय डियर केवल कह के आपको एड्रेस करता हूँ मेरे दोस्त केवल। सो मैं आपको इतना बताऊंगा कि रियल एस्टेट की बात करता हूँ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करने में जेन्युइनली मजा आता है, क्योंकि दे आर जेन्युइन पे मास्टर्स।
उनमें मार्जिन अच्छा है, वो इंडस्ट्री ऐसी है कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को और कोई क्लाइंट से फीस लेने में शायद दिक्कत आती है, ये एक कम्युनिटी ऐसी है जिससे हम फीस लेने में ईज लगता है। तो अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है। मैंने आपको बताया जैसे मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रियल एस्टेट इंडिया में ही नहीं, न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट क्लाइंट के साथ भी काम करता हूँ। तो इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ तो हम पहले उनका इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट और फाइनेंस का काम तो सभी करते थे, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। रेरा आने के बाद इतनी स्टिफ एक्ट जो इंडिया में लाया गया है रियल एस्टेट के लिए, उसके कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन प्ले द रोल ऑफ बीइंग एडवाइजर्स। और क्या एडवाइस दे सकते हैं? रेरा में ट्रेडिशनली क्या होता है, फॉर्म 3 है जो हर क्वार्टर भरना है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही भर सकता है। तो आप एक तो क्वार्टरली सर्टिफिकेशन कर रहे हो, दूसरा उसको एनुअल रिटर्न भरना है फॉर्म 5 में, जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सर्टिफाई कर सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, फॉर्म 5 वो सीए करेगा जिसने फॉर्म 3 नहीं भरा है। तो एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्स इनटू प्ले फॉर ऑल रियल एस्टेट क्लाइंट्स। ये तो बात हो गई 2 सर्टिफिकेशन की। इसके अलावा हर एक प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करना है। और मेरी आपको 100% गारंटी से बात बता रहा हूँ, आज की तारीख में 90% ऑफ रजिस्ट्रेशन रियल एस्टेट में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स ही कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, 7,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गए हैं। अगर आप 25,000 से मल्टीप्लाई कर लो एक रजिस्ट्रेशन की फी, कम से कम अहमदाबाद में तो कुछ लोग 50,000 भी ले रहे हैं, तो कितना काम सिर्फ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने में मिल गया। प्रोजेक्ट रजिस्टर किया, क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया, एनुअल रिटर्न फाइल किया। इसके अलावा आप उसको क्या क्या सर्विसेज और दे सकते हो जो हमने सोचा ही नहीं है। लीगल इज अ ह्यूज एस्पेक्ट। अभी तक क्या हो रहा था, सारे डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम अग्रीमेंट फॉर सेल, बानाखत या काठियावाड़ में इसे साटा काट बोलते हैं, सूरत में भी शायद उसे वही नाम दिया जाता है, तो उसे जो ड्राफ्ट करते थे एडवोकेट करते थे। बट अंडर द रियल एस्टेट एक्ट नाउ आपको रेरा के फॉर्मेट में उसके क्लॉजेस के हिसाब से आपको बनाना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि लीगल एडवाइस इन अग्रीमेंट फॉर सेल और सेल डीड के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो हो गया। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट का कैश फ्लो का स्ट्रक्चरिंग है, क्योंकि अभी पहले जो डेवलपर क्या करता था, पैसा आया नहीं तो उसमें से थोड़ा पैसा रखा, बाकी का पैसा नए प्रोजेक्ट में ले गया। अब आपको 70-30 का रूल अप्लाई होता है। ओनली 70% इज टू बी अप्लाइड फॉर द प्रोजेक्ट, 30% इज व्हाट यू कैन विड्रॉ एंड पुट इट फॉर योर ओन रिक्वायरमेंट। तो उसका कैश फ्लो मैनेजमेंट उसे कैसे करना है, उसका लाइव कैश फ्लो ट्रैकिंग किस मोड पे हो सकता है, बिकॉज टैली आपको ये डेटा नहीं देगा, पर उसको इंश्योर करना है कि वो इस लिमिट को एक्सीड नहीं करता। इसके लिए भी बहुत सारी सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइव बेसिस पे दे सकता है। तो ये बात हो गई कैश फ्लो मैनेजमेंट की। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब ये इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट इतने पैकेजेस दे रहा है, देयर इज अ प्रधानमंत्री योजना फॉर आवास दैट इज कमिंग अप, एंड ऑलमोस्ट 40% ऑफ रजिस्ट्रेशंस टुडे आर ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे हम लो इनकम और मीडियम इनकम हाउसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे फंड रेजिंग आप कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो रियल एस्टेट तो मैं ऐसा मानता हूँ इट्स अ ट्रिमेंडस एरिया। स्पेशली गुजरात में हमने देखा है कि प्राइसेस में कोई ऐसा बड़ा गिरावट आई नहीं है। और जब हम बात कर रहे हैं कि चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही हैं और इंडिया आ रही हैं, गुजरात, सूरत एंड सराउंडिंग एरियाज ऑफ आवर्स आर गोइंग टू बी बिग इंडस्ट्रियल हब्स इन द ईयर्स टू कम। इन सभी के लिए रियल एस्टेट का रिक्वायरमेंट होगा। रियल एस्टेट डेवलपमेंट बहुत होना बाकी है, और इसके लिए हम मान सकता हूं कि द ग्रोथ दैट इज बीइंग सीन इन द रियल एस्टेट रेरा, गुजरेरा की वेबसाइट पे आप अगर उसको ट्रैक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से एरियाज में नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी है। और फाइनली जो डेटा एनालिटिक्स की हम बात करते हैं, वो सिर्फ डेटा एक्सेल पे या ऑडिट में नहीं होता है। आज आप अगर उसकी वेबसाइट पे जाओगे गुजरेरा की, आप हर एक प्रोजेक्ट कहाँ है, कौन से लोकेशन पे है, उसमें कितने यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल हैं और कितने बिक गए हैं, ये डेटा भी लाइव आता है। मैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों से पूछता हूँ, हम में से कितने लोगों ने उसका एनालिसिस किया है कि सूरत की बात कर रहे हैं तो वहां किस एरिया में कितने, अगर अथवा गेट है वहां मैं स्कीम रखता हूँ तो कितना रिस्पॉन्स आता है, कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और कितने टाइम में सारे बुकिंग्स हो जाते हैं। और अगर मैं वही वराछा में रखता हूँ, कतरगाम में रखता हूँ, कामरेज में रखता हूँ, तो प्रोजेक्ट में क्या एवरेज प्राइस रियलाइजेशन है, इस पे हम अगर कंसल्ट करेंगे तो आप आपके रियल एस्टेट डेवलपर को जाके बोल सकते हो, सर यहाँ प्रोजेक्ट रखने से अच्छा है इस एरिया में जाओ, यहाँ डिमांड बहुत स्ट्रांग है। बट सैडली हम उस डेटा का एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, બિલ્ડર બોલતા है भैया અહીંયા પ્રોજેક્ટ મૂકું છું, આપણે કે સારું સાહેબ લાવો કંપની બનાવી દો, એલએલપી બનાવી દો। બટ એ પહેલાનો રોલ જો આપણે કરી શકીએ કે ક્યાં પ્રોજેક્ટ તમારે મૂકવો જોઈએ,
કયો એરિયામાં તમે પ્રોજેક્ટ મૂકશો તો ફાસ્ટેસ્ટ રિયલાઇઝેશન થશે, તમને પૈસાનું સારો ભાવ મળશે, લેન્ડનો ભાવ ઓછો છે. જો એ વેલ્યુ ઓફ એડિશન આપણે કરી શકીશું ને કેવલ, તો હું માનું છું કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો બહુ મોટો રોલ થઈ શકે છે. In short, you are saying that one we should shift ourselves from just providing service to be a business partner. Yes, absolutely, sir. We have to start understanding કે તમે ક્વેરી પૂછો અને ક્વેરી લઈને જાઓ ઓડિટમાં, એની એક ઇમ્પોર્ટન્સ છે, પણ ક્લાયન્ટને વેલ્યુ સવાલ પૂછવાની જવાબ આપનારની છે. આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ અને ડોક્ટર આપણને કહે કે કેવું છે, સિમ્ટમ્સ છે, ત્યારે આપણને બરાબર છે, પણ આપણને છેલ્લે એના પાસે તો એ જ સાંભળવું છે કે સાહેબ હું ક્યારે સાજો થઈશ, મને કઈ દવાઓ લેવી જોઈએ. Answers are what people are looking for, not questions. So if you are able to give that to your clients, you are able to provide solution, તો જ વેલ્યુ થશે. આઈ થિંક એક સ્ટુડન્ટ છે, એક બે એ લોકો કારના એક સવાલ પૂછી રહ્યા છે એક્ઝામિનેશન માટે, હું એ ક્લિયર કરી દઉં તો એમના મનમાં શાંતિ થઈ જાય. जो सीए की एग्जाम्स हैं वो जुलाई में अभी शेड्यूल्ड हैं, जिस शेड्यूल पे है आज की तारीख में वो उसी लेवल डेट पे है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है. काउंसिल एक्टिवली इसके बारे में अवेयर है. अगर कोई भी चेंज होगा, कुछ भी डिसीजन होगा तो उसे अनाउंस करेंगे, पर एज ऑफ नाउ 26 जुलाई ही है. और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि इस पे कुछ चेंज होने वाला है या कंसिडरेशन में है. वी आर कंस्टेंटली एनालाइजिंग द सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाएगा. तब तक के लिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, प्लीज फोकस ऑन द एग्जामिनेशन. और एक चीज और कहूंगा, अगर आपको लगता है वर्स्ट के सिनेरियो में भी कि जुलाई की एग्जाम है, हो रही है और आपको सेफ्टी मेंटली नहीं हो रहा है, तो एक अटेम्प्ट बाद में दोगे तो भी दुनिया नहीं लुट जाने वाली है. मैं और केवल जी आज आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, हमें किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे इंटर में या फाइनल में. आप 6 महीना बाद भी सीए हो जाओगे, दुनिया का कोई अंत नहीं आने वाला है, तो उसके लिए फिक्र मत करो. अगर आपको नहीं लग रहा है सेफ्टी है तो आप नवंबर में तो दे ही सकते हो, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, समय मिला है, मेन एग्जाम जून थी जुलाई गई है, तो तैयारी करिए और बेटर तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से पास हो सकते हैं. अच्छा हुआ आपने इसको जवाब दे ही दिया भाई, ठंडक थई तने. भगवान. चलो सर, રેરાથી આપણે આગળ વધીએ. હા, રેરાથી આપણે આગળ વધીએ અને રિયલ એસ્ટેટમાં જે તમે કીધું કે ભાઈ there is ample of opportunities. I guess why there is so much opportunities, because real estate industries which was an unorganized industry, and now under the able leadership of Modi ji, he is converting this whole unorganized industry into the organized industry, and there comes the role of chartered accountant. Absolutely truly said. એન્ડ કેવલ એક બીજી વસ્તુ તમને જાણીને એકદમ હેરાનગતિ થશે, સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ એમ્પ્લોયર છે એગ્રીકલ્ચર પછી રિયલ એસ્ટેટ. એટલું મોટું ઇન્ડસ્ટ્રી છે અને તોય વર્ષો સુધી અનઓર્ગેનાઇઝ ફોર્મમાં ચાલતી હતી. એટલે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એ જ છે કે આને ઓર્ગેનાઇઝ કઈ રીતે કરી શકાય, કેમ કે ઓર્ગેનાઇઝડ હશે તો ઘણી બધી બીજી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી થશે. यस. हाँ सर, रेरा और रियल एस्टेट से जरा आगे बढ़ते हैं, and I think we should talk about arbitration. 2-5 मिनट में मेरे हिसाब से अपना 1 घंटे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो शायद तक इंस्टाग्राम लाइव ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा. तो व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ कि we will come live once again because there are lot many interesting part जो हमको सर के साथ अभी डिस्कशन करना है. करीना कपूर भी पिक्चर में आने वाली है, दीपिका पादुकोण भी पिक्चर में आने वाली है. So for the viewers, there are lot many interesting things which we are going to discuss with Aniket sir. But till then, we should go ahead. Sir, let me talk with you something on the arbitration. How you see arbitration as in the future? So, look at this as the other way, that as of today, in the corona situation especially, आपने बधाने एक शब्द जो सुना होगा आपने सबने, वो है फोर्स मेजोर. कि काफी कॉन्ट्रैक्ट्स पे लोग बोल रहे हैं फोर्स मेजोर इन्वोक करिए. फोर्स मेजोर मींस an event of God which was not predictable and because of which a contract can be voided. यानी मुझे आपको समझो, आपकी मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी और उसमें फोर्स मेजोर का क्लॉज था. मैं अभी उसको इन्वोक करके बोल रहा हूँ कि केवल दोस्त आ तो આવું થઈ ગયું છે, હું ઓફિસ જઈ નથી શક્યો એટલે હું તમને ભાડું નહીં આપું, કે હું તમારા પાસે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ છે સર્વિસનો મારો, જેમાં મેં લખેલું છે કે દર મહિને તમને આટલી ફી આપું છું અને એ ફી હવે હું તમને નહીં આપું કહીને કે ભાઈ આ ફોર્સ મેજોર કન્ડિશન છે. એમ તો ઇન્ડસ્ટ્રી ને બિઝનેસમાં લાખો એવા કોન્ટ્રાક્ટ છે જેમાં આનું ઇમ્પેક્ટ આવશે. નાનો દાખલો આપ્યો છે, એના સિવાય તો ઘણા બધા બીજા દાખલા છે. તમારું કન્સ્ટ્રક્શનનું કોન્ટ્રાક્ટ હોય અને તમે કીધું હોય કે હું 6 મહિનામાં પૂરું કરી આપીશ, પણ હવે તમે નથી કરી શકતા કેમ કે તમારી પાસે લોકો જ નથી, લોકડાઉન જતું રહ્યું છે પણ લેબર નથી આવ્યું, તો એ બધા એક્સટેન્ડ થશે.
આ બધા જ કેસીસમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો રોલ અને આર્બિટ્રેટર રોલ એટલે આવશે કે કોઈ પણ બે પાર્ટીઓ એને રિઝોલ્વ કરવા ઈચ્છતી હશે, દે વિલ નોટ ગો ટુ ધ કોર્ટ. કોર્ટ જે